Distinguished guests, let's now shift gears and dive into the world of Indian cinema, which has been a significant contributor to India's soft power. With over 1 billion fans worldwide, Indian movies have become a cultural phenomenon, breaking language barriers and transcending geographical boundaries. To discuss the magic of Indian cinema and its impact on India's soft power, we have with us someone who has captivated us with her enthralling performances, infectious smile, and an endearing on-screen presence for over 3 decades, with iconic films like Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai, and My Name is Khan. No guesses there. Ladies and gentlemen, please welcome the fun and fearless, the one and only Kajol, in conversation with Kishore Ajwani. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. The stage is all yours, Kishore. Welcome to Rising Bharat, Kajol. Thank you so much. First of all, let me say good afternoon, good evening, whatever it takes. Namaste, namaskar. I'm very, very happy to be here. Thank you so much for inviting me. ये बताइए, even your mother used to go only by her first name. आप भी सिर्फ काजोल के नाम से जाने जाती हैं, जबकि इतने फेमस सरनेम्स आपके साथ जुड़ सकते थे. ये कॉन्शियस चॉइस रही है? बिल्कुल, बहुत ही कॉन्शियस चॉइस थी. मेरी माँ ने मुझे पूछा था जब मैं पिक्चरों में आना चाहती थी उस वक्त, तो मुझे पूछा था कि दैट you have such a amazing lineage from your grandmother's side, and you have your grandfather's side as well. और मुझे उस वक्त और अभी भी लगता है कि मुझे किसी की तरफदारी नहीं करनी थी. I wanted to be true to myself, and I did not want the baggage of lineage. तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ काजोल के नाम से ना जानी जाऊं, तो शायद इतना प्रेशर नहीं आएगा मुझ पर. आप कह रही हैं कि जब आप फिल्मों में आना चाहती थी, पर हमने तो सुना था आप फिल्मों में आना नहीं चाहती थी. बिल्कुल नहीं. मैंने हमेशा अपनी माँ को इतना काम करते हुए देखा है और इतनी तकलीफों से गुजरते हुए देखा है कि मुझे हमेशा लगा कि जितना काम करते हैं लोग इस इंडस्ट्री में उतने पैसे नहीं मिलते उनको. पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं. आई थिंक आई सीन माई मदर वर्क like a maniac from 7 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon to 10 o'clock at night. तो 2 शिफ्ट काम करते थे और 10 बजे रात को मेरी माँ घर पे आती थी. and it was not a life that I ever wanted to do. मुझे हमेशा लगता था I wanted to be that one जिससे 9 to 5 जॉब हो और हर महीने में पेचेक आता है और उसके हिसाब से आप अपना महीने का बजट बनाते हैं. You wanted that kind of a life. बिल्कुल. लेकिन अब तो पेचेक आपको रोज आता है. अभी हाँ. मैंने अपने fortunately I have learned how to manage my money better. लेकिन फिर कैसे हुआ? How did it start? आप तो स्कूल में थी शायद जब आपने फिल्म साइन की. जी, मैं I was in my first year of college. तो उस वक्त मैं एक्चुअली मेरी जो कजिन थी उसे फिल्मों में आना था, तो वो उसे फोटो सेशन कराना था, तो मैं उसके साथ मेरी मामा की बेटी थी. अच्छा. तो उसे फिल्मों में आना था एंड मैं उसके साथ गई उसका हाथ पकड़ने के लिए कि डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू. मैं हूं, I'll come with you, I'll hold your hand and we'll sit together, हम लोग साथ में बैठेंगे and don't get nervous, I'm here with you. और मैं वहां गई और मैंने तो बोला, गौतम ने बोला कि तू आ गई है तो then might as well do your pictures also. बोला अच्छा ठीक है, I mean she's doing hers, ठीक है, even I'll do mine, but I was like let's finish hers first, उसके पहले खत्म कर दो. तो उसके बाद उसके फोटोज लिए और she did get an offer for a film, I want to tell you, and she did an ad as well. Okay. But she was like, okay, this is not my scene, ये मुझे नहीं करना है.
और मुझे भी एक ऑफर मिली पिक्चर के लिए फॉर बेखुदी, और मुझे करनी थी, तो मैंने कर ली, और मुझे लगा कि ये जिंदगी जो है दिस सूट्स मी। ये रियलाइजेशन कब हुआ? आप तो कह रही थी कि आप अपनी आई थिंक आई हैड सो मच फन उस वक्त, और आज तक मुझे लगता है कि वर्क वॉज माई होल प्लान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज टू हैव एज मच फन एज पॉसिबल। और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, टच वुड। आई मेट मिकी कॉन्ट्रैक्टर, I met Gautam Rajadaksh, I met Rahul Uncle and Kamal Sadana and Kamal ji, who was my cinematographer at that point. So unhone, I was 16 years old. I was 15 and a half actually. So I was 15 and a half, और मुझे सबने इतना literally मुझे लगा कि मुझे पाल पोस के बड़ा किया उस 1-2 सालों में, और I had such a good time that I could not imagine, like I couldn't imagine going and sitting in an office somewhere and having as much fun or meeting as many people that I connected with or felt on, so much a part of basically my tribe, as you would call it. लेकिन वो अब आप कह रहे हैं कि लिनेज ने आपको नहीं चाहिए थी, लेकिन वो मिला तो इसी वजह से ना, लिनेज की वजह से। Probably, I would like to believe that it had something to do with my talent as well. और हमने जो शुरुआत के जो पिक्चर्स देखी थी उसमें सैफ अली खान थे साथ में जी, और फिर वो चेंज हो गया था जी। तो उससे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई? एक्चुअली मुझे फिल्मों के बारे में उस वक्त इतना पता नहीं था कि मैं डिसअपॉइंटमेंट या हैप्पीनेस फील करूं, बट यस ऑफ कोर्स Seth was really cool. He was a great guy to work with, and yes, I was like, okay, why are we changing him? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्यों निकाला गया था या जो भी है। निकाला गया था मतलब हाँ। उसने क्यों पिक्चर छोड़ दी? But yes, but of course again Kamal was lovely to work with. So like I said, I was too young at that point of time to realize, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, etc. उसके बाद इतने साल गुजर गए और आप अभी तक फिल्में कर रहे हैं। अभी एक माँ फिल्म आ रही है आपकी जी, और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जो कंटेम्प्रेरीज उस टाइम की आपके साथ थी वो काफी पीछे रह गई, और आप अभी भी एक तो वैसी की वैसी लग रही हैं और वैसे का वैसा काम कर रही हैं, और वही फन जो आपने कहा वो आप अभी भी कर रही हैं। Absolutely. I would love to say that, but I would just like to clarify this, which I have said before, that I was never any part of any rat race. तो मैंने कभी जो है अपने आप को किसी नंबर के हिसाब से देखा ही नहीं। तो नंबर 1 जो होता है वो देखता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। I was never, everybody else was 1 to 10 to 100, मैं तो रेस में ही नहीं थी। तो मैं अभी तक मैं बोलती हूँ कि मैं रेस में ही नहीं हूँ। वो रेस जो है वो सब खेल रहे हैं, रेस कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन मैं तो रेस में हूं ही नहीं। और इफ यू लुक एट माई फिल्मोग्राफी ऑल्सो, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट इट द अदर डे, एंड आई प्रोबेबली एम द लीस्ट वर्कड एक्टर इन द होल फिल्म इंडस्ट्री। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जो लोग अभी रिसेंटली आए हैं उन्होंने ज्यादा काम किया होगा मुझसे ज्यादा। आई थिंक माई फिल्मोग्राफी इज व्हाट अबाउट 50 फिल्म्स, 50-55 फिल्म्स, दैट्स इट। तो आप चूजी हैं या लेजी हैं? दोनों। बिल्कुल। I choose to be lazy. I choose to be lazy. I choose to have a slower life. I choose to enjoy my life as is along with working. I think working should be a part of my life, not apart from my life. And in every which way, I think I have found a balance to life. और जो हर चीज जो होती है, मुझे अपनी कॉफी बहुत पसंद है, सुबह की कॉफी, स्लो मॉर्निंग्स। आई लाइक माई स्लो मॉर्निंग, आई लाइक वेकिंग अप लेट, आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली। तो काम के लिए अलग बात होती है, बट सो इट्स जस्ट आई लाइक द स्मॉल थिंग्स, एंड आई लाइक माई लाइफ। जो है जिंदगी जो है वो अगर हम अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे?